Good morning students, welcome to physics class. Today we will discuss a new concept that is related with rotational motion. First of all, let me recall the terms which we are familiar with. As we know, in linear motion we have used the various terms like linear displacement, that displacement is represented by S, linear velocity by V, linear acceleration by symbol A, and force by symbol F. But now if we want to discuss this rotational motion, so in rotational motion what will be rotational and analogous terms to that of this linear motion terms? When we will say linear displacement, similarly in rotational motion we will have angular displacement that is represented by the term theta. As linear velocity in linear motion, another term for it in rotational motion is angular velocity represented by symbol omega. For this linear acceleration also we have rotational analogous symbol that is alpha. This is angular acceleration, and these terms are you are familiar with. But now the new term that we are introducing, that is, see, as in linear motion we use the term force. Force is generally responsible for all kind of changes in the motion. So here in rotational motion we will use a term that is torque, represented by symbol 2. So here in next topic we will discuss this torque in detail. This is very important concept from the conceptual point of view. Now when we will discuss this rotational motion, if we will again take equation of motion in rotational motion, let me compare. As we know, S equal to ut plus half at square. So in rotational motion, if we will write its analogous equation, linear displacement is replaced by angular displacement theta, linear velocity by angular velocity. As it is initial velocity, so I am representing it by omega naught. Time is the same, plus half. Linear acceleration is replaced by angular acceleration, that means alpha t square. Similarly, v square minus u square equal to 2as. So what can be the equation? You can relate final velocity, symbol can be omega, initial velocity, symbol can be omega naught, and this is final angular velocity, this is initial angular velocity, 2 into angular acceleration into angular displacement. And third equation, v equal to u plus at, again it will be angular velocity, final angular velocity equal to initial angular velocity plus angular acceleration multiplied by time. So these are rotational motion equation that you can use in numericals. Now at this time we will just basically explain the concept of this torque. That is very important concept. So let me introduce this concept. So this concept of torque, this torque is another name for torque is moment of force. So basically torque is giving you the turning effect of force. What is it? It is टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. देखिए ये एक टेक्निकल टर्म हो जाती है. अब हमें इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेना होगा. आप लोग देखिए अपने घर का डोर, आप इसको करके भी देख सकते हैं. आप डोर को खोलते हैं, जैसे ये देखिए ये फिक्स पॉइंट है. अब जब ये खुलता है ये डोर की पोजीशन चेंज होती है. आप इसे ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उस केस में ये फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट मान लो अगर मैं ये दिखाती हूँ पोजीशन, देखिए ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी चेंज पोजीशन है. तो ये फिक्स पॉइंट है, हिंज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हिंज. इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट डोर ओपन या क्लोज होता है. अब ये जो डोर यहाँ पर, यानी ये यहाँ पर हमारा हैंडल भी लगा होता है. यूजुअली हैंडल हमारा यहाँ लगा होता है, जिसको पकड़ के आप इसे ओपन या क्लोज करते हैं. तो ये जो फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये जो थोड़ा सा रोटेशन, ये आप देख रहे हैं कि जितना भी पूरा भी आप खोल सकते हैं मैक्सिमम, और थीटा एंगल से जब ये ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है या रोटेट हो रहा है, तो दिस इज़ बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. आप देख सकते हैं. देखिए जैसे ये आपके पास फिजिक्स की बुक है, कोई भी बुक है, बुक हो गई, डोर का ओपनिंग या क्लोज हो गया, विंडो पेन आप ले सकते हैं. जब आप कोई भी ओपनिंग वाला काम करते हैं, अगर मान लो मैं इसको लूँ, ये आपका एक एज पॉइंट है, हिंज पॉइंट, जिसके अबाउट ये बुक का एज खुलेगा. तो अब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ,
ये मैंने इसको ओपन किया, तो एक तरह से ये हिंज है ना, तो हमने कैसे खोला, क्योंकि ये तो बुक है, तो इस केस में हमने इस पॉइंट को फिक्स पकड़ा है और यहाँ से मैं इसको ओपन कर रही हूँ, राइट, दिस इज ओपनिंग। तो बेसिकली मैं फोर्स कहाँ लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ इसके दिस बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पर। अगर ये फोर्स मुझे यहाँ बीच में लगाना है, अब मैंने फोर्स लगा दिया, जैसे मैं इसको ऐसे गेट की तरह लूँ, डोर की तरह लूँ, अब मैं कहूँ कि यहाँ से मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ, ओपन हो पाएगा या क्लोज हो पाएगा, नहीं। इवन डोर पे तो आप शायद थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये ओपन क्लोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये फिजिबल नहीं है। ऐसे ही विंडो पेन पे, तभी आपने ध्यान दिया होगा, ध्यान दीजिए इस पे कि हैंडल्स कभी भी डोर के बीच में नहीं लगे होते हैं, हमेशा साइड पे लगा होता है, ताकि हैंडल, यहाँ जो हैंडल होता है उसको पकड़ के आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है जिससे हम डोर्स खोलते हैं, विंडो खोलते हैं, अपनी बुक का पेपर टर्न करते हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करता है टॉर्क को, जिसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट। यू आर अप्लाइंग द फोर्स एट दिस पॉइंट, दिस इज द हिंज about which it is rotating. So this is the case of rotational motion. So now we will explain it further. So basically torque is the turning effect of force about a fixed point. Fixed point is very important. This is a fixed point जिसके about, इस hinge के about हम इसे rotate कर रहे हैं। तो टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, दैट इसमें हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं एट व्हाट एंगल दैट फोर्स इज अप्लाइंग, दैट फोर्स इज एक्टिंग। इन तीनों को समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए या रिकॉल कीजिए डोर को। अगर आप देखिए कि मैंने फोर्स लगाना है, अगर मैं डोर को बहुत हल्का सा फोर्स लगाऊंगी तो एकदम वो पूरा नहीं खुल पाएगा, आपको हैंडल को पकड़ के पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा फोर्स लगाएंगे, यानी फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर ये फोर्स मैं यहाँ इसके हैंडल पे लगाती हूँ तब तो टर्निंग इफेक्ट अच्छे से होगा, रोटेशन ज़्यादा होगा, लेकिन यही फोर्स मैं हिंज के अबाउट लगा दूँ, ठीक है, तो उस केस में ये मूव नहीं करेगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे तो थोड़ा सा रोटेशन होगा उस केस में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट एंगल फोर्स इज एक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि जो हैंडल है वो डोर के एज पर जो होता है, और एग्जैक्टली उसकी वजह से जब आप फोर्स लगाते हैं वो ऑलमोस्ट आपका 90 डिग्री, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है, यानी इस पॉइंट पे अगर इस हैंडल को आप पकड़ते हैं तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जब फोर्स लगता है तो एंगल क्या हो जाता है, इस फोर्स यानी फोर्स जो इधर हो गया और इसकी जो एक्सिस हो गई, इसके बीच में एंगल ये 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री होने के बाद टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है इसको हम मैथमेटिकल देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि टॉर्क को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात है, हमें फोर्स चाहिए। फोर्स कितना, फोर्स ज़्यादा होगा तभी फोर्स होगा, तभी टर्निंग इफेक्ट होगा। किस पॉइंट पर फोर्स लगेगा ये इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर फोर्स प्रॉपर पॉइंट पे नहीं लगा, कितना भी ज़्यादा आपने फोर्स लगा दिया तब भी उसको टर्न करना ईजी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि फोर्स किस एंगल पर लगेगा। इन सब पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम इसकी बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे आते हैं। इट इज़ मेजर्ड है दिस टॉक, टॉक को सिम्बॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल ध्यान से देखिए, जैसे आप टी बनाते हैं, अब इसमें टी नहीं बनाना, क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे टर्न करना है और ये इसकी जो लेग है इसको थोड़ा ऊपर रोटेट कर देना है। दोबारा देखिए, एग्जैक्टली तो टी हो गया, हमने क्या किया, ये इसको थोड़ा सा डाउन टर्न किया और ये ऐसे हो गया, ये टॉक का सिंबल है, राइट। अब देखिए मैथमेटिकली, टॉक इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। ये पॉइंट ध्यान से समझिए, perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। इसको समझने के लिए देखिए, हमने कहा इस डायग्राम में कि ये लाइन ऑफ एक्शन, ये जो फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एक्चुअली ये अगर डिस्टेंस है और ये फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इन दोनों के बीच का ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ये फोर्स हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे हो गया, फोर्स से।
तो इसका मतलब फोर्स और ये वाला जो डिस्टेंस है ये r है जिस पर हमारा हैंडल लगा है, दिस मस्ट बी एंगल मस्ट बी, दिस कंपोनेंट मस्ट बी परपेंडिकुलर. So torque is taken as force into perpendicular distance. So here, अब देखिए हमने कहा कि मान लो ये फिक्स पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये r हो गया. अब फोर्स अगर एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर यानी इस तरीके से लगता, ऐसे लगता, तो ये तो परपेंडिकुलर फोर्स हो गया. लेकिन ज़रूरी तो नहीं है फोर्स परपेंडिकुलर लगे. उस केस में क्या, मान लो हम ये कहते हैं कि फोर्स ऐसे लग रहा है किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस इंक्लाइन डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टली इस लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, या ये कहें कि इस डिस्टेंस के साथ जो कि फिक्स पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में ये एंगल थीटा पर लग रहा है. तो हम क्या करेंगे, वी विल रिजॉल्व दिस फोर्स. तो इसको रिजॉल्व करने के बाद जो एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट बना वो बन गया एफ कॉस थीटा, और ये जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना एफ साइन थीटा. दोबारा से सुनिए, हम कहते हैं कि फोर्स हमेशा इस डिस्टेंस आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये तो कंडीशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. मान लो हम ये कहें कि फोर्स किसी इंक्लाइन डायरेक्शन पे लग जाए, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हम मैथमेटिकली इसको रिजॉल्व करेंगे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. एक बार मैथमेटिकल पॉइंट समझो, फिर इसका फिजिकल मीनिंग भी समझाएंगे. एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा. अब क्या देखना है हमें कि टर्निंग इफेक्ट यानी ये जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट होगा, ये इस तरीके से जो रोटेशन होगा वो किस कंपोनेंट की वजह से होगा, ये होगा एफ साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से. बेसिकली टर्निंग इफेक्ट इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट. यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब सिर्फ इतना देखना है कि जो डिस्टेंस है और जो फोर्स है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. अब ये एफ साइन थीटा और ये आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे, द टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन theta. So what is the role of f cos theta? F cos theta cannot produce any torque. It has no contribution in producing torque. Now here if we have to write the expression for torque, this will be this distance r multiplied by f sin theta. तो क्या लिखूंगी मैं, r into f sin theta. यानी इसको मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, टॉक इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन हमने यही पढ़ी है. तो यहाँ पे आर एफ साइन थीटा का जब हम एक्सपेंशन करते हैं, इट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. सो टॉक इज टेकन एज आर क्रॉस एफ. बेसिकली टॉक रोटेशनल इफेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस टॉक इज अ वेक्टर क्वांटिटी. टॉक इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन. तो अब अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं आर टॉक इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप. देखिए जब हम ये लिख रहे थे यहाँ सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं तो यहाँ पर जो वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे इंडिकेट करते हैं, यूनिट वेक्टर एन कैप दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ. So here we can also find the direction of this torque by right hand screw rule or right hand thumb rule. क्या रूल था वो, let me revise it. Let's see here कि मान लो ये वेक्टर r है और ये वेक्टर f है और इनके बीच में ये वाला एंगल थीटा है. तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, so देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, that here we have to calculate the direction of, we have to find direction of torque that is perpendicular to plane containing this R and F. So here if we curl the finger of right hand from vector R to F, हमने क्या कहा, कर्ल द फिंगर ऑफ दिस राइट हैंड फ्रॉम R to F. दिस थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड. इसका मतलब जब हम R से F की तरफ अपने फिंगर्स को टर्न कर रहे हैं तो थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, और ये थंब किसकी डायरेक्शन देगा, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉक. दिस इज आउटवर्ड, राइट, दिस टॉक इज आउटवर्ड.
एक चीज़ और देखिए, इसमें देखिए ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कौन सी है, दिस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है रोटेशन की तो टॉर्क आपके पास आउटवर्ड है, विच इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव। कन्वेंशनली जब हम इसको लेके चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं। So now if we will recapitulate the basic concept of torque in mathematical form, torque is equal to RF sin theta, and in vector form torque is taken as R cross F. अब अगर हम इस एंगल को देखें, यहाँ से देखिए जो हम बात कर रहे थे कि टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, और एंगल कि फोर्स किस एंगल पे लगा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें कि थीटा की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब अगर ये हमारी एक्सिस है, या अगर हम इस पॉइंट को लें और ये आर डिस्टेंस है और फोर्स भी हम इसी डायरेक्शन में लगा दें, तो उस केस में साइन 0 क्या होगा, 0। तो टॉर्क प्रोड्यूस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे आप डोर को लेके चलो, जैसे आप ये एग्जांपल लो कि मान लो जैसे ये वाला डोर है और मैंने फोर्स ऐसे इसके पैरेलल लगा दिया, तो क्या ये रोटेट कर पाएगा, नहीं मूव कर पाएगा। आप घर में करके देख सकते हो, डोर के प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग आप फोर्स लगाइए, फोर्स इस तरीके से लगाइए वो प्लेन की तरफ हो, वो उसके परपेंडिकुलर ना हो, तो उस केस में उसका मोशन बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बिल्कुल रोटेट नहीं कर पाएगा। सो इट मीन्स इफ थीटा इक्वल टू 0, नो टर्निंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। लाइक इफ वी आर टेकिंग थीटा टू बी 90 डिग्री, अब अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, R इंटू एफ। आर को आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इट्स योर चॉइस, बोथ आर द सेम। So here torque will be, you can say it is maximum value, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि ये R है और फोर्स हमने ऐसे परपेंडिकुलर लगाया तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, तो टर्निंग इफेक्ट उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। सो इट मीन्स इफ torque to be produced and maximum torque has to be produced, in that case angle between this perpendicular distance and force must be 90 degree. If it is inclined at some angle, यानी अगर फोर्स किसी एंगल पर लगाते हैं तो उस केस में टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, या फिर अगर हमें टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो हमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा उस केस में, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। नाउ टॉर्क को हमने लिया RF साइन थीटा, व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क को हम क्या कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ देखिए डेफिनेशन में RF साइन थीटा, साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता, R मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो हम क्या कहेंगे, SI यूनिट इज न्यूटन मीटर। सो CGS यूनिट क्या हो जाएगा, CGS यूनिट के लिए न्यूटन की जगह क्या होगा, फोर्स का यूनिट डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर। So these are the units, one in SI system, this is in CGS system, these are the units of torque in SI and CGS system. तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि which component of force is responsible for producing torque, लाइक अगर हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो इसे कोऑर्डिनेट की टर्म्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में बताएं, ये R है, मान लो फोर्स किसी एंगल पे लगाया हो तो ये एंगल हो गया थीटा, तो रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया F cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin थीटा। तो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क, तो यू विल से दिस F sin थीटा कंपोनेंट। सो बेसिकली दिस F sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस R, सो दिस विल प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, दिस विल प्रोड्यूस टॉर्क। सो दिस कंपोनेंट F cos थीटा को हम क्या नाम देते हैं, इट इज रेडियल कंपोनेंट। कई बार यहाँ स्टूडेंट्स वर्ड बोलने में कंफ्यूज कर जाते हैं, रेडियल कंपोनेंट, रेडियल क्यों है, जैसे आप एक रेडियस वर्ड समझते हैं, जैसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R के अलोंग जो कंपोनेंट है, यानी एग्जैक्टली सेम लाइन, इसी के अलोंग है, अलोंग द रेडियस एक तरह से कह सकें, तो वो हो गया रेडियल कंपोनेंट। और F sin थीटा कंपोनेंट को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। सो torque is due to only transverse component and there is no contribution of radial component of force in torque. Now rectangular component of torque, देखिए torque क्या होता है, torque is R cross F,
हालांकि इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में यू हैव डन ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑल द डिटेल्स. सो अगर हम इसको कहें कि r को मान लो मैं एक्सप्लेन करती हूँ एज अ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. फोर्स को हम लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. तो टॉक को हम अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी टॉक एक्स एक्स प्लस 2y जे प्लस 2z के, यानी ये तीनों कंपोनेंट हो गए अलोंग 3 एक्सिस. तो आपको करना क्या है, ये आपको होमवर्क करना है, आपको ट्राई करके देखेंगे. दिस विल बी फॉर यू एज अ होमवर्क. मैं सिर्फ फाइनल कंक्लूजन लिखूंगी. r यानी r का ये f के ये कंपोनेंट, अब आप r और f के कंपोनेंट यहाँ लिखेंगे. इट विल गिव यू प्रैक्टिस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. r क्रॉस f में यहाँ x y z, यहाँ फर्दर x, यहाँ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और यहाँ एफ एक्स. अब मैं डायरेक्ट कंक्लूजन लिख रही हूँ जिसको आप टैली करेंगे. यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज योर वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई इंटू आई प्लस जेड एफ एक्स माइनस एफ जेड इंटू जे प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू के. सॉल्व करके देखिएगा, यही रिजल्ट आएगा. तो सिंपल आप कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉक क्या हो गया, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई. टॉक का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस वन जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड. सिमिलरली टॉक जेड हो जाएगा, दिस इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. देखिए ये तो हमने इसके कंपैरिजन करके निकाला. मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ. देखो हमारे पास 3 कंपोनेंट है एक्स वाई जेड. टॉक एक्स निकालना है, तो अब आपको फ्लो कैसे करना है, आपको प्रोसीड कैसे करना है कि पहले पोजीशन वेक्टर आएगा फिर फोर्स आएगा, क्योंकि टॉक होता है आर क्रॉस एफ. तो अगर ये एक्स कंपोनेंट है तो एक्स के बाद ऑर्डर में क्या आता है वाई, वाई के बाद ऑर्डर में क्या आता है जेड. यानी ये शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा. जैसे एक्स कंपोनेंट निकालना है तो पोजीशन कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर वाई और फोर्स का जेड कंपोनेंट, फिर माइनस करके जैसे यहाँ वाई इंटू एफ जेड, फिर माइनस करोगे तो सफिक्स रिवर्स कर दो माइनस जेड एफ वाई. ऐसे ही अगर टॉ वाई लिखना है तो वाई के बाद कौन सा आता है जेड आता है, और जेड के बाद फर्दर उसी ऑर्डर में हम लेते हैं, यानी एक्स वाई जेड. ठीक है, तो जेड के बाद फर्दर एक्स. तो y कंपोनेंट होगा तो z एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड. सिमिलरली दिस टॉक जेड. So this is just for remembrance, this is for understanding. So I hope now this is clear to you. Just give it a practice. Now after this next short result I am taking, this is power associated with torque. Power associated with torque. देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हम लीनियर मोशन का ही यूज़ करेंगे. जैसे अगर आप लीनियर मोशन में वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब स्मॉल वर्क डन किया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो स्मॉल वर्क डन होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर भी अगर हम कहें स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग अ पार्टिकल थ्रू एंगल डी थीटा. स्मॉल वर्क डन अगर आपको निकालना है इन रोटेटिंग अ पार्टिकल थ्रू डी थीटा. तो मैं ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, सिमिलर वे में हम इसको लिखेंगे. कैसे, वर्क डन को तो हम डी डब्ल्यू ही लिखेंगे. फोर्स की जगह हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं टॉक. लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या यूज़ करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, नॉट डी एक्स डी थीटा. देखिए सिमिलर हो गया ना. अब हमें क्या निकालना है, पावर. पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को भी आप टाइम के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. तो डी थीटा बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. तो पावर क्या हो गया, टॉक इनटू ओमेगा. ये एक रिजल्ट हो गया जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. अगर आप चाहें इस रिजल्ट को डायरेक्टली लर्न करना तो देखिए लीनियर मोशन में पावर क्या होता है, पावर के कई फॉर्मूले होते हैं. अब फोर्स की टर्म्स में क्या होता है, फोर्स इनटू लीनियर वेलोसिटी. आप चेक कर सकते हैं, पावर होता है रेट ऑफ गोइंग वर्क
वर्क को आप सिंप्लीफाई करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे? आप हालांकि आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फोर्स को एज सच, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला ये भी हो सकता है ना। तो यानी कि यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसका रोटेशनल एनालॉगस क्या है? टॉर्क इनटू ओमेगा। Now, after the discussion all about mathematical and theoretical concepts of torque, let me come to the more applicative part, that is conceptual problems. देखिए, we have different conceptual problems that can be asked in exams. So, first question which I am taking, that why do we use wrench with long arms? wrench क्या होते हैं? देखिए, wrench कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आपने घरों में देखा होगा, आपके पेरेंट्स या कोई टेक्नीशियन आता है, उसके हाथ में होता है बोल्स, नट्स को ओपन करने के लिए। अलग अलग साइजेस के होते हैं, स्मॉल साइज़, बड़ा साइज़, अलग अलग होते हैं। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये नट बोल्ट्स को टाइट या लूज करने के लिए इसमें बोल्ट को आप नट को फिक्स करते हैं और पूरे रेंज को घुमाते हैं इस रॉड से पकड़ के, तो वो लूज या टाइट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? वाई वी यूज दिस रेंच लाइक दिस रेंच विद लॉन्ग आर्म्स। सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या आंसर करने के लिए हमें इसका बेसिक स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि क्योंकि जब ये मूव करेगा तो रोटेशन होगा, यानी ये कॉन्सेप्ट कहीं यूज होगा। या इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें, दैट दिस इज इक्वल टू RF साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, दिस इज RF साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, it is proportional to F, it is also proportional to angle। यानी हमने क्या कहा कि रेंच विद लॉन्ग आर्म, यानी लॉन्ग आर्म का मतलब ये डिस्टेंस, ये R ज़्यादा होगा। सो इफ R इंक्रीजेस, टर्निंग इफेक्ट विल बी मोर। ठीक है, विद द इवन नॉर्मल फोर्स, स्मॉल फोर्स। अगर ये R को हम छोटा कर देंगे, अगर R मान लो हम रेंज की ये वाली लेंथ को हम शॉर्ट कर दें, तो उस केस में हमें इस रेंज को रोटेट करने में दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी? उस केस में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी हैंड से फोर्स ज़्यादा लगेगा। योर हैंड विल एक्सपीरियंस सम बर्डन ऑन दैट। क्यों? क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रहा है, आपका एफर्ट ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स वाई व्हाइल इट इज़ डिजाइनिंग, इट्स कंस्ट्रक्टिंग, रेंचेस आर ऑलवेज डिजाइन्ड विद लॉन्ग आर्म्स। So because if R is less, then more force will be required to produce the same turning effect. I hope this conceptual problem is clear to you. Now coming to next. Here, explain why handles are provided near edge of the door. देखिए, ये हिंज हो गया, अब ये एज हो गया। क्या कहा है कि हैंडल्स हमेशा जो यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं वो एज पर क्यों लगाए जाते हैं, वो पीछे कहीं या बीच में कहीं क्यों नहीं लगाए जाते? देखिए, हैंडल यहाँ लगाने की वजह भी क्या है कि एक्चुअली ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसके विद रिस्पेक्ट में ये डोर रोटेट करेगा। यानी अगर ये हैंडल यहाँ लगा देंगे तो ये R की वैल्यू कम है, हैंडल यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी R की वैल्यू कम है। यानी एज पे लगाने का मतलब डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। तो अगर डिस्टेंस R मैक्सिमम हो जाएगा तो टर्निंग इफेक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा। अगर R हम कम रखेंगे, यानी मान लो अगर हमने यहाँ पर हैंडल कहीं प्रोवाइड कर दिया, तो उसमें क्या होगा? अगर टर्निंग इफेक्ट करना पड़ेगा तो आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इट इज़ ऑलवेज डिजाइन सच दैट हैंडल्स आर प्रोवाइडेड नियर द एज ऑफ द डोर। इसी से रिलेटेड अब एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इफ वी अप्लाई फोर्स एट द एज ऑफ द डोर एट एन एंगल अदर देन 90, भाई हम कहते हैं कि यहाँ पर हैंडल इस तरीके से है कि आपने जब फोर्स लगाया वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पर लग जाता है। लेकिन अगर हम जैसे मान लो ये कहें कि जैसे आपका ये डोर है, अब अगर फोर्स हम ऐसे, यानी हम इसको ऐसे करके ओपन, ये देखो जैसे मैं फिंगर की हेल्प से इसे ओपन कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ, एक तरह से फोर्स का इफेक्ट परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको फोर्स को अब ऐसे लगाऊं, अब इसमें तो फिर भी बहुत मुश्किल है इसको मूव करना। आप डोर पे करके देखिए कि अगर आप फोर्स को किसी इंक्लाइन डायरेक्शन पे लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट बहुत कम हो पाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो डोर मूव कर पाएगा। So it is very difficult to open or close the door with the same amount of force which you are applying.
सो इट मीन्स मैक्सिमम एंगल शुड बी 90 डिग्री। तभी जो हैंडल्स लगे होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से लगे होते हैं कि आपका ऑटोमेटिकली एंगल हैंडल के साथ दैट इज 90 डिग्री बनता है। यानी आपका एंगल का मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हैं और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। अब इफ वी पुश द डोर एट द हिंज, अगर हम यहाँ से ही इसको पुश करने लगे देन उस केस में क्या होगा, मतलब अगर हम फोर्स यहाँ लगाएं, अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है, तो उस केस में इट विल बी नॉट पॉसिबल टू ओपन और क्लोज द डोर और यू हैव टू अप्लाई मच मोर फोर्स। वन मोर लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, you have seen hand driven grinding machine। अगर आप नॉर्मल टर्म्स में कहें तो चक्की जिसे बोलते थे, इसमें क्या होता था, ऐसा गोल प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पर एक हैंडल होता है, दो स्टोन्स के बीच में, यानी ये एक तरह से यहाँ पर एक रोड सा होता है जिसको आप रोटेट करते हैं। पुराने घरों में शायद अभी नज़र आ जाए, लेकिन वैसे चक्की जो पुराने टाइम में लोग घरों में ही गेहूँ पीसने के लिए यूज़ करते थे, उसको क्या कहते हैं, हैंड ड्राइवन ग्राइंडिंग मशीन। तो बेसिकली उसका पर्पस क्या होता था कि उसमें जैसे ये जो स्टोन है ये सेंट्रल पॉइंट है, तो हैंडल कभी भी यहाँ नहीं होता था, हैंडल हमेशा साइड पॉइंट पर होता था, यहाँ होल होता था, उसमें एक हैंडल प्रोवाइड किया जाता था जिसकी वजह से ये होता है। या आप और प्रैक्टिकल देखो, घर में आपके पास चॉपर होते हैं, हैंड ड्राइवन वाले चॉपर्स घर में आपकी मम्मी की किचन में मिलेंगे, उसमें भी जो हैंडल होता है वो आपको इस तरीके से होता है कि उसमें फोर्स आपका नॉर्मल फोर्स लगे और टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम। यानी जितनी भी मैकेनिकल चीज़ें ये वाइब्रेशन से रिलेटेड बनाई जाती है, इन कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करके देख कर बनाई जाती है। सो वाई इन हैंड ड्राइवन ग्राइंडिंग मशीन हैंडल इज पुट एट द सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन क्या है कि हैंडल हम सर्कमफ्रेंस पे क्यों लगाते हैं, फर्दर क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग इस फिक्स पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, जिससे कि टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है विद अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ फोर्स, इसमें आपको एफर्ट कम करना पड़ता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी कई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपको आपकी रेफरेंस बुक्स में मिलेंगे। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक, जस्ट गो थ्रू योर रेफरेंस बुक एंड try to understand the concepts. So this is all about talk. Revise it thoroughly. Thank you. Have a nice day.